اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی گجرات سورت سے۔ جیسے کہ مجھ سے ایک قادیانی مربی سے بات ہوئی، آپ دیکھیں گے میں اس کو بار بار اس کی کتاب پر، مرزا غلام احمد قادیانی کتاب پر لا رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا، ایک مرتبہ بھی وہ کتاب پر آیا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اور میں نے اس کو جلانے کے لیے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس کی کتاب کو آگ لگا دو، تو اتنا چڑ گیا کہ ہمارے گھر کو آگ لگانے کے لیے اس نے کہہ دیا۔ اور جب میں لا رہا ہوں اس کو کہ آؤ کتاب پر بات کرو، کیونکہ اس نے ایک بات کہی تھی بیچ میں کہ ہم مانتے ہیں قرآن کو اور مرزا کے الہام کو مانتے ہیں، اس کے وحی کو مانتے ہیں، تو اس کی وحی جو الہام ہے کہاں پر ہے؟ میں دکھانے کو تو دکھاؤں، رات بھر ویڈیو بناؤں تو بھی چھوٹی پڑ جائے گی، اتنے اس کے جھوٹ ہے کہ پوری رات بھر ویڈیو بنے تو بھی چھوٹی پڑ جائے گی، اتنے اس میں جھوٹ ہے۔ میں چند ایک دکھانا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں، آتی رہیں گے انشاءاللہ آگے۔ میں چند ایک دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے پاس ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 47 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ دیکھیے یہاں پر کتنا بڑا جھوٹ اسے بولے، بالکل صاف طور سے جھوٹ بولا۔ کیا کہتا ہے؟ کسی صحیح حدیث اور موقوف متصل حدیث سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا! اور میں حدیث شریف سے میں دکھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا جھوٹ بول رہا ہے کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں دجال، اس لیے اپنی کتابوں پر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 393 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے نزدیک تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارے پیشوائی کریں گے۔ کیا ہے؟ جب مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بیچ نازل ہوں گے، اتریں گے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں، ایسے تو حدیث شریف 200-250 حدیث موجود ہے، لیکن میں چند ایک دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر اسے جھوٹ بولا ہے کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہاں پر ایک بالکل صحیح حدیث ہے اور وہاں پہ اس کا انکار کر رہا ہے مرزا، اور یہ جھوٹوں کا سردار تھا۔ اتنے جھوٹ بولے اور واقعی میں سچا ہوتا تو اس کی کتاب کی طرف یہ عبدالحق آتا اور اس نے اس بات کو بھی اقرار کیا ہے کہ میری کتاب کو 3 بار پڑھنے کا حکم دیا ہے مرزا نے خود، کہ جب تک میری کتاب کو 3 بار پڑھو۔ اب پڑھو تو دلیل کیوں نہ دے؟ اور اس کی بیوقوفی دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے بھائی تم مانتے ہو کیا؟ ارے میں کیوں مانوں گا، میں تو تم کو دلیل دیتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں مانتا۔ دیکھیے یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے جھوٹ بولا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں اگر دکھانا شروع کروں تو پوری رات کم پڑ جائے گی، اتنے جھوٹ بولے ہیں اور بالکل صاف سری جھوٹ بولے ہیں، ایسے نہیں کہ اشارتاً ڈائریکٹ بولے اس نے جھوٹ۔ جیسے کہ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 17، کتاب کا نام ہے تحفہ گولرویہ اور صفحہ نمبر 262 نمبر ہے، 263 نمبر۔ یہاں پہ دیکھیے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا کذاب اعظم۔ دکھا رہا ہوں میں، اتنا جھوٹ تو کوئی غیر مسلم میں نہیں باندھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہ مرزا غلام احمد قادری نے جھوٹ بولا۔ دیکھیے یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، پوری عبارت میں جہاں سے حاشیہ ہے وہاں شروع کر رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی اور تکمیل اشاعت ہدایت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھوجا آدم اور رسائل اشاعت غیر ممکن تھا، اسی لیے قرآن شریف کی یہ آیت وآخرین لمحہ منہم یلحقوا بہ، یہ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ کیا گیا۔ دیکھیے کتنا قرآن میں جھوٹ باندھا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں یہ آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہی آیت پڑھ کے بتائی۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے مرزا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ثانی کا وعدہ کیا، بالکل جھوٹ۔ اس کے وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ تاکہ دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ساتھ پورا تھا، اس وقت بشاعت عدم و رسال پورا نہیں ہو پایا۔
क्या कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम रह गया था वो पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद सानी का वादा किया है, जो बुरुज़ी रंग में कि ऐसे ज़माने में जो पूरा जबकि ज़मीन की तमाम कौमों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए और रसाइल पैदा हो गए थे। अब इसने क्या कुरान की तरफ कुरान की आयत पेश करके झूठ बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद सानी का वादा किया गया है। कितना बड़ा इसने झूठ माना। 2 हवाले दिए, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे हवाले हैं कि मैं एक एक पता चला जाऊँ तो पूरी रात हो जाए। जैसे कि मेरे पास किताब है रूहानी खजान, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 374। किताब का नाम है नुज़ुलुल मसीह। क्या कहता है, हदीसों में साफ तौर पर यह बात निकलती है कि आखिरी ज़माने में नबी खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिर होंगे। बिल्कुल झूठ, झूठ, कितना सफा झूठ बोल रहा है ये। कह रहा है कि हदीस में बात साफ निकलती है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होंगे। ये कौन सी हदीस में है? वो हदीस आसमान में। पूछेंगे कादियानी से भाई किस हदीस में है, वो हदीस है आसमान में। या ऐसी बातें हैं, मैं एक एक दिखाऊँ तो बहुत वक्त हो जाएगा। मैं चंद एक में ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। तो ये देखिए, कादियानी जो होते हैं ना, आपके सामने आएंगे, वो इस तरीके की बात करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे बात करेंगे? कहेंगे कि हम उसको मुजद्दिद मानते हैं, मसीह मौत मानते हैं, फुला मानते, हालांकि इसकी किताब में दावे कुछ और है और ये बताते कुछ और है। इसीलिए ये अपनी किताब से भाग रहा था और ये भागता ही रहेंगे जिंदगी भर। मुझे कह रहा था कि मैं भाग रहा हूँ। जब वो आयत पढ़ रहा था कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैंने बोला कि पढ़ आगे गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में आता है, ऐ अल्लाह हमको उससे बचा जिस पर गज़ब नाजिल हुआ। तो गज़ब किसके पर नाजिल हुआ? यही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर, मौजूद लाइने मौजूद पर, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे दज्जाल झूठे पैदा होंगे और कम से कम 30 ऐसे झूठे दावेदार नबूवत के पैदा होंगे जो झूठा दावा करेंगे। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी आखिर ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहदीस कमा लम तस्मऊ व अंतुम वला आबाउकुम फ़य्याहुकुम वय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ़्सिदूनकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 16, मिशकात शरीफ हदीस नंबर 154, कोई भी जाके देख सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में झूठ बोलने वाले ऐसे दज्जाल पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे पास लाएंगे जो तुमने ना सुनी होंगी, ना ही तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी सुनी होंगी। और जैसे कि मैंने दिखाया कि ऐसी ऐसी बातें जो 1400 साल में कभी किसी ने नहीं सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़ाहिर होंगे। ये ऐसी ऐसी बातें पेश कर रहा है, ऐसी ऐसी हदीसें तुम्हारे सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो आप दुआ में याद रखिएगा। मैं ज़्यादा तवील नहीं कर दूंगा, आगे इंशाल्लाह कुछ कम से कम 1-1.5 घंटे की लंबी इंशाल्लाह अच्छे से पूरा हवाले के साथ पेश करूंगा। ठीक है, आप दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अब्दुल हक से बात कर रहे हैं क्या? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ, गुजरात सूरत से। ये मैं सादिक अली अंसारी बात कर रहा हूँ, गुजरात सूरत से। अच्छा, कुछ वक्त दे पाएंगे? वक्त है बात करने का? क्या बात करनी है? आपसे हयात ईसा अलैहिस्सलाम पे बात करनी थी। क्या हुआ याद को? क्या हुआ है याद को? कहीं जिंदा है? सबूत मिल गया कोई? हाँ, तो इसी पर तो बात करना चाहते हैं ना। तो उसकी फिर बात की जाती है जिसका कोई सबूत हो हयात का, अगर है तो बताओ मुझे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना कि इसी पर बात करना चाहता हूँ। क्या आप बात करेंगे? वफात तो उसकी होती है ना जिसका कोई सबूत हो। हाँ, है ना? हाँ जी। तो आप कहते हैं, यानी जमात अहमदिया कहते हैं कि जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी, तो इनकी कब्र है कहाँ पर? कब्र तो होगी कहीं पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कहाँ पे? हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्रें कहाँ हैं? उन सब की कब्रें मेरे पास फोटो मौजूद है। कहीं व्हाट्सएप करूँ? नहीं, है कहाँ पर है कब्र के? फोटो तो किसी का ले लो। हाँ, नहीं, उस पर सब कुछ है, सबूत के साथ है। और कुरान में भी जिक्र आया हुआ है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हदीस में भी जिक्र आया है जनाब इनका मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। ठीक है, पूरी निशानी के साथ आया है। तो है ना, मैं दूंगा ना, मेरे पास सबूत है। मैं फोटो भेजूँ, व्हाट्सएप करूँ? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फोटो लेकर रखी है मैंने।
उनके अब आप मुझे हज़रत बता मूसा दें अलैहिस्सलाम की मौत, हाँ बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो आप फिलहाल जिस पर अभी बात करनी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर की दावा आपका है कि वो वफात पा चुके, तो उनकी कब्र का हमारा निशान दावा है नहीं है कहाँ मेरे पर, मुझे भाई, बताएं। ये गलत फहमी आप ना करें, हमारा दावा नहीं, कुरान का दावा है। हाँ तो लाए ना। कोई भी इंसान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, उसको किसी को भी दवाम जिंदगी उम्र नहीं लंबी बख्शी गई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू भी अगर मर जाए या कत्ल हो जाए तो क्या ये लोग फिर जाएंगे? हाँ तो वही तो कह रहे हो। वो जनाब मिसाल हेलो, कुरान पाक की सबसे बड़ी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बाहयात लंबी जिंदगी ना रहे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं रहे। सुने मिसाल से अकीदा नहीं बनता जनाब, मिसाल से अकीदा नहीं, अकीदा बनाता है कुरान हदीस से। तो हमको कुरान में दिखाएं कहाँ पे जिक्र है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वफात का जिक्र है, कहाँ पे जिक्र है, मुझे बताएं कुरान ये से। मैंने जो आयत पढ़ी है, ये आयत इसीलिए मैंने पढ़ी, आयत पढ़ी नहीं, कहीं आयत का की तर्जुमा जो बताया है। सुने कहीं कीट कहीं का रोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो आप कहीं कीट कहीं का रोड़ा ना डालें। बात करें कि जनाब, सुन ले मेरी बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो सुनिए मेरी बात सुने। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ तो मैं भी बात करूंगा, एक मिनट सुन ले, आराम से बात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके आने की खबर दी है हदीस शरीफ में? जिसने और कुरान की आने की खबर दी आपके है। हाँ 1991 तक 1891 तक, मेरी बात सुन ले, 1891 तक आपके मिर्जा साहब किसको मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम हयात है? किसको मानते थे? जो जिसका आने का वादा था कि एक नबी ने आना है, उसकी की इंतजार थी। हाँ तो इंतजार थी ना, तो वो जब वो 1891 तक, ठीक है ना, वो नहीं वो मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ठीक है, वो नुज़ूल करेंगे उनकी किताबों में। हाँ सारी दुनिया मानती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने धूप में पकौड़े चलना शुरू कर दिया, जरा हमें बताएं। हाँ वो जिस मुस्ले ने आना था ना, वो मुस्ले ही उन्हीं अल्लाह ताला ने उनको ही बना दिया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, उनको बना दिया। हाँ कैसे? वो तो खुद इनकार कर रही इस बात का। कैसे की बात नहीं, इनकार जो है वो जिस बात का किया वो हमें पता है, आप नहीं हमें बताइए। बता दे, मुझे बताए ना किस बात का इनकार की। चले आप ही बता दे। चले, कोई ऐसा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा नहीं आ सकता जो शरीयत में कोई कमी या पेशी करे। कोई ऐसी किताब और नहीं आ सकती जो कुरान पाक की तालीम में कोई कमी या पेशी करे। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया जो मैंने पाया वो सब कुछ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से पाया, और यही कुरान का वादा है। सुने आप मेरी बात, आपने पाया कहा है, पाया सुने, पाया आपने कहा है, सुने कहा है कुरान हदीस में जो पाया, आप ये बात कह रहे हैं ना कि कुरान हदीस में पाया। अब सुनिए, मैं दलील देता हूँ, सुने, उन्हीं की किताब से देता हूँ, उनकी किताबें पढ़े होंगे मेरे ख्याल से आप। नहीं, उनकी किताब से क्यों आप दलील देंगे? आप अरे डर क्यों रहे हैं जनाब? अरे आपके लिए तो हुज्जत है ना। अरे आप डर क्यों रहे हैं अब्दुल हक साहब? भाई किसने कहा कि हमारे लिए मिर्जा साहब की किताबें आपके साथ बात करने के लिए हुज्जत है? अरे सारी जिंदगी एक मिनट सुन ले, सारी जिंदगी वो इसी किताब को लिखकर तो मनवाया है। बस मेरी किताब पढ़ो, अगर जो मेरी किताब 3 न पढ़े फला है ढेका है, सारा कुछ है। मेरी किताब मैंने कहा, उन्होंने फरमाया मेरी किताब एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा पढ़ो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, क्यों आप भाग रहे हैं? अपनी जिंदगियों में दाखिल लो, अपनी सुने हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 3 बार पढ़ने के लिए क्यों हुक्म दिया गया है? वजह क्या है? पढ़ेंगे तो ही, तो वही तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप गुमराह हो जाते थे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आप कौन गुमराह है? तो मैं दिखा रहा हूँ ना, उन्हीं किताब से दिखा रहा हूँ, वो तो उन्हीं किताबें पढ़ रहा हूँ, भाग भी रहे, दिखा तो रहा हूँ ना। आप नहीं दिखा सकते। पढ़ू क्यों पढ़ू? मैं नहीं पढ़ना ना, मेरी बात सुनो। अरे यार डर रहे, पढ़ रहा हो तो कह रहे। अगर कोई गैर मुस्लिम आकर कुरान पाक की सीरत सुन ना यार, आकर कोई गैर मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे, सुन ना, अगर आप बात कब करेंगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर? कि ला तकरबुस सलात कुरान पाक में कहा है नमाज के नजदीक ना जाओ, क्या आप मान जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आगे है वाहन तुम सुकारा, आगे नहीं जब तुम नशे कर, यहाँ पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। अरे जनाब तो फिर मैं पूरी ही तो इबारत पढ़ूंगा, थोड़ी आधी पढ़ूंगा मैं। पढ़नी नहीं ना।
हाँ तो ले पूरी भी नहीं पढ़े, मतलब आप वांतुम सुकारा भी नहीं पढ़, वांतुम सुकारा भी आप नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो पढ़ने क्या देंगे? अब मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, तो वो भी आप बताने से काफिर है, जो कि कब्र कश्मीर में है। अच्छा, तो किन की कब्र है? यूज़ आसिफ की। यूज़े आसिफ कौन है? यूज़े आसिफ एक शहजादा, सुन ले, यूज़े आसिफ एक शहजादा था, और शहजादा जिसका होता है, जिसके वालिद होते हैं, उसके वालिद का नाम भी मैं बताता हूँ। एक मिनट होल्ड करो, कब है होल्ड करना, एक मिनट। हाँ करो 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 करो। चलो और खैरियत? हेलो हेलो, हाँ बोले बोले बोले, सुन रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ, तो बीच में एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ जिसके पाठ हो रहा है, बात समझ नहीं आएगी, मैं उससे आगे जाके फिर कॉल करूँगा। अच्छा, तो बात करें ना ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान हदीस से ही बात करें आप, कुरान हदीस पे ही बात करें। कुरान पाक की तालीम। अरे जनाब, सारी जिंदगी जिन्होंने रगड़ा लगाया है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर ही, उन्हीं पर बात करने भाग रहे हैं आप, ये तो कोई बात ना हुई। जिंदगी तो रगड़ा खा रहे हैं आप लोग, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, रगड़ा तो वही तो कह रहा हूँ, रगड़ा आप खुद खा रहे, बात करने से भाग रहे। मैं कुरान हदीस से बात करना चाह रहा हूँ, तो आप कुरान हदीस से बात करें, नहीं भागे, तो वही तो कह रहा। हेलो हेलो अब्दुल्ला साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुरान हदीस से बात करना चाहे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हयात वफात पर, तो मैं इस पर तैयार हूँ। अगर आपके मिर्जा आपकी किताब पर बात करने के लिए तैयार है, जिनको 3 मरतबा पढ़ने के लिए कहा है, वो आप भी इसका इकरार कर रहे हैं। आप ना जाने क्यों आप उस किताब को नहीं पढ़ना चाहते और उससे दलील नहीं लेना चाहते। अरे उसकी दलील हम आपको देंगे नहीं तो फिर किसको देंगे, जरा वो भी हमें समझा दे, किसको देंगे दलील? किताबों से दलील तब देना जब आप उनको मानते हो। अरे मैं क्यों मानूंगा, मैं क्यों मानूंगा? वजह क्या मुझे मानने की? दलील इसलिए मैं दूंगी क्योंकि उनकी किताबें आपके लिए हुज्जत है। आपने इस बात का इकरार किया कि 3 मरतबा पढ़नी है, तो 3 मरतबा पढ़ने किस लिए है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बोले बोले बोले। हमारे लिए तो वो हुज्जत है, इसलिए कि हम ईमान ले आए हैं। ईमान आप लाए हैं ना, तो हेलो एक मिनट सुन ले, उसमें से दलील नहीं देने के हकदार क्यों नहीं? वजह आपके पास सच्चाई इस्लाम मुखालिफ की किताबों से उनकी दलील अपने लिए हुज्जत नहीं है। आपकी किताबें हुज्जत नहीं है। बाकी को लेता होगा, बाकी को लेता होगा। ले ये तो बात आपने अजीब कर दी। आप सच्चे मुसलमान कहाँ से साबित होते हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कुरान हदीस से बात करना चाहता हूँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। सच्चे मुसलमान कहाँ से साबित होते हैं ये बताइए। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कुरान हदीस से ही बात करूंगा, ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर बात करेंगे। आपने पहले क्यों कहा कि मैं मिर्जा साहब की किताब से हवाला? मैं क्या बोला कि कुरान हदीस और आपकी मिर्जा साहब की किताबें भी आएंगी, क्योंकि इनमें उनकी वो बातें जो मिलेगी दलील पेश करेंगे। आप मुसलमान कुरान हदीस से सच्चे साबित होते हैं। जनाब आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं तो जाके ईमान लाए हैं। आप वो किताबें नहीं लिखते तो आप तो वैसे के वैसे रह जाते हैं। पढ़ के ईमान लाया हूँ मैं तो, कुरान तो आए ना कुरान, हाँ तो आए, तो कुरान पाक से बात करें तब पढ़ेगा जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी, पढ़े एक आयत पढ़े, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बताए, नाम एक आयत पढ़ दे। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की वफात ढूंढकर थोड़ा मिर्जा साहब पर ईमान लाया है। मैंने तो कुरान पाक में से वो चीज ढूंढकर ईमान लाया है कि नबी आ सकता है। जैसे आपके मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी धूप में पकौड़े तले, उसी तरह आप लोग भी चल रहे हैं। देख बात तमीज से करनी है, तमीज नहीं, बदतमीजी नहीं करे, बदतमीजी नहीं कर रहा, मतलब कि एक वो हवाई, मतलब बदतमीजी नहीं, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब हवाई बातें की इस तरीके से समझे है तो मिसाल का तरीक होता है। चले ठीक है, मिसालें समझ लीजिए, फला फला ये चले मिसालें समझ लीजिए। सुने मेरी बात सुने, चले सुने मेरी बात सुने। सारी जिंदगी उन्होंने कयासी किया है, हवाई बातें की है, ये कह सकते हैं? मेरी बात सुने, आप बिल्कुल नहीं कह सकते जब आप ईमान ही नहीं ला रहे। दलील है मेरी बात ना, इस्लाम बताओ। अरे जनाब अगर मैं उनकी किताबों पर सुने, अगर मैं अगर कादियानी होता, ठीक है, तो मैं उनकी किताबों पर एतराजी क्यों करता? एतराज तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ। आप कौन है? आप कौन है? मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। गुजराती है ना? हाँ गुजराती हैं तो आप सुन्नी हनफी बरेलवी अगर हैं तो कुरान और हदीस से अपनी सच्चाई का मेयार बताएं। हाँ तो बताऊंगा ना, पहले आप ईसा अलैहिस्सलाम पर वहाँ से पीछे क्यों छुड़ा रहे हैं? अभी तो आप बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं कि हम लोग सारी जिंदगी रगड़ा खाते रहे। कौन खाता रहा है? कौन? वो मेरी बात सुने, फिर वही बात
कौन खाता रहा है? नहीं आते ना। नहीं मैं तो कोई बात नहीं, आप ये बात बोले ना कि आप लोग सारी जिंदगी रगड़ा खाते रहे, मैं तो कहीं नहीं रहा यार। ये तो बात आपने कही है। मैंने कहा आप ये बताएं कि आप अगर सच्चाई का दावेदार हैं तो कहाँ से सच्चाई पेश करते हैं? अरे तो वो सारी चीजें मैं दूंगा, वो तो सारी चीजें अगली बार बात आएगी, अगली बार वो बात ही आएगी ना। बीच में आप मेरी बात काट रहे हैं ना भाई। दूंगा क्या मतलब हुआ? दूंगा इसलिए मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं दूंगा इसलिए क्योंकि वो बातें बाद में आ रही हैं। यार मैं जो बोल रहा हूँ कि दूंगा का मतलब ये है कि अभी तक आपको यकीन नहीं है कि मैं अगर दूं, मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुरान से और हदीस से तमाम मेरे पास दलील है, मैं खुद दलील दे सकता हूँ। वजह ये कि वो ये बात, ये मौजू बाद में आ रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजू पहले आ रहा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोई ईसा का मौजू पहले नहीं आता, पहले कुरान और हदीस। जनाब सारी जिंदगी आप लोग भी इसी पर ही बात करते हैं और हम लोग भी बात करते हैं, और आपके मिर्जा साहब ने भी इसी पर किताबें लिखी हैं, और आप सुन ले मेरी बात। साहब से इत्तेफाक है ही नहीं, क्यों बार बार आपको है ना, आपको है ना, आपको है कि नहीं? दे रहे हैं या इस्लाम की दावत दे रहे हैं? मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, इस्लामी की तो तालीम बता रहा हूँ, आप बात तो करें। मिर्जा साहब ने कितना झूठ, इस्लाम की कितना बोलियां मारी है किताबों में, तो मैं दिखाऊंगा। ओ यार, ये इस्लाम की तालीम आप समझते हैं कि जो भी बुलाए देने की किताबों से देने, यही मैं इसलिए दूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी ही किताब में लिखा हुआ है ना, तो ये चीजें लिखा है, कहते हैं मेरी बात सुन ले, लिखा हुआ उसको मानना ही नहीं तो क्यों पूछा? तो आप डर क्यों नहीं? आपने उनकी किताबें सुन रहे, इतना क्यों, इतना खौफ किस बात का है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? कुरान से क्यों है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कुरान हदीस से बात करें आप। अरे मैं कह तो रहा हूँ, एक आयत पढ़े जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी, पढ़ देगा है तब पढ़े आप। मैंने ईसा की वफात से क्या लेना? मैंने जिस नबी पे ईमान लाया है मैंने उसकी दलील ढूंढनी है। किस नबी की पर ईमान लाया? जो उम्मती नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में आ सकता है, मैंने उसकी दलील ढूंढनी है। पढ़े सूरत फातिहा में है अन अमता अलैहिम। हाँ ठीक है, उस इनाम वाले रास्ते पर चलना है। हाँ। और फिर कुरान पाक ने फरमाया, आगे सुनो एक मिनट अब्दुल्ला साहब, एक मिनट आपने कहा अन अमता अलैहिम, आगे जरा पढ़ा गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, वो पूरा पढ़े ना जरा सा, कुछ समझ में आता है। अच्छा, मैं अन अमता अलैहिम का जो है वो मफहूम आपको बताना चाहता था, आप कहते हैं पूरी पढ़े, तो मैं फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दलील ये मिली कि मैंने चलना है सीधे रास्ते पर, वो सीधा रास्ता जो इनाम वाला रास्ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है दूसरी सूरत में शुरू में ही फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान पाक की किताब जो है ये ला रैब है, कोई ऐब नहीं, और ये हिदायत देती है मुत्तकियों को। ठीक है, ठीक है। फिर मैं पढ़ता गया तो सूरत अल-निसा की आयत नंबर 70 मुझे मिली, जो आपके यहाँ 69 होगी। हम बिस्मिल्लाह भी जो है वो आयत में गिनती करते हैं। वहाँ पे अल्लाह ताला का एक वादा मिला मुझे। वादा ये मिला कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मै युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व ahsana उलाइका रफीक। यहाँ पे अल्लाह ताला का वादा ये मिला कि जो मेरी और मेरे इस रसूल की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इसकी इत्तबा करेगा, मैं उन लोगों के साथ कर दूंगा जो नबियों में से हैं, सद्दीकों में से, शहीदों में से और सालिहीन में से। तो यहाँ नबी की खबर भी मिल गई, सद्दीक की, शहीद की, सालिह की भी, कि अब जो भी इनाम मिल रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से मिलना है। हाँ। तो हमने जब जिंदगी देखी हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
تو ان کی ساری زندگی اسلامی تعلیم کی جو ہے وہ خدمت میں نکلی، زندگی دعوی پہلی بھی اور دعوی کے بعد بھی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کو غلام اور عاشق صادق کہتے تھے۔ اور جب ان کا دعویٰ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے دعوے کی دلیل میرا الہام اور قرآن پاک ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ دعوے کرنے والا صرف اللہ سے مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے جو ہے وہ اعلان کر سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو میرے بتائے بغیر اگر میری طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو میں اس کی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر رگے جان کاٹ دوں گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مثال دی ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام 74 سال کی زندگی انہوں نے پائی، دنیا نے اپنے ایڑی چوٹی کے زور لگائے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکا، اور اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت فرمائی۔ آج تمام دنیا کے ملکوں میں اسلام حقیقی اسلام احمدیت کا پیغام دنیا پہنچا رہی ہے، تو ثابت ہوا وہ بالکل سچے تھے اور واقعہ آج کے صادق اور غلام تھے، تو اس لیے ہم ایمان لے آئے ان پہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ اب آپ نے اتنی لمبی تقریریں کی تو ان میں دلیل آپ نے کہا تھی کہ آپ نے مرزا صاحب کا نام پتہ کچھ بتایا، آپ نے اتنی ساری لمبی تقریریں تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کا بھی۔ میری بات سن لیں، ایک منٹ سنیں میری بات، چلے آپ بولے، ایک سیکنڈ، ہاں پھر بیچ میں ٹوکیے گا نہیں، پھر بولیے، چلے بولے۔ میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر تھوڑے جو ہے وہ صورت اس طرح قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر بتا دیں کہ ہم یہ آیتوں کے مطابق جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کو نہیں مانتے ہوئے بتا دیں۔ ہاں تو بتا تو رہا ہوں نا، کیوں ٹینشن لیتے آپ؟ مجھے بولنے دیں نا، مجھے جو آپ نے مرزا صاحب پہ لکھا وہ تو سن لے کم سے کم، میں ساری چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں سے آپ کے مرزا صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آیتیں آپ نے صرف وہ پڑھ کے بتائی ہیں، وہ تو ہم میری بات سنیں، وہ ساری چیزیں آپ نے پاس پڑھی ہیں غیر المغضوب میں۔ ارے سن لیں، دیکھیں بیچ میں نہ بات کریں، سامنے والی بات سنیں، جب میں نے بات سنی تو ویسا سنا کریں، تو میں نے اسی لیے کہا تھا غیر المغضوب میں ذرا پڑھ کے ترجمہ کر دیتے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہتر، ہاں کر دے ذرا، ہاں کر دے یہاں پہ بات وضاحت کر دیتا ہوں میں آگے۔ پر تیرا غضب ہوا اور جو ہاں بس اب سنیے، اب 5 منٹ خاموش رہیے، آپ سنتے رہیے میری بات، آرام سے سنیے، یہ بات آپ نے ترجمہ پڑھا اسی لیے میں نے پڑھوایا تھا، اب سنتے جائیے، میں حوالہ پڑھتے جا رہا ہوں، سنتے جائیے آرام سے، کیونکہ انہوں نے ایک کتاب میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 62 پر مرزا صاحب کو کہا ہے، سن لیں میری بات سن لیں، ارے تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، غیر المغضوب میں نے پڑھایا کس لیے، میں نے غیر المغضوب پڑھایا کس لیے، اس لیے تو میں سناؤں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں غیر المغضوب، اسی لیے تو میں پڑھایا ہوں، میں کس لیے پڑھایا ہوں، میں اسی لیے تو پڑھایا ہوں، میں سنتے جائیے جناب، استدلال کا رد کرنا ہے تو قرآن سے کریں، اسی طرح کر رہا ہوں آپ کے مرزا صاحب کی، قرآن سے کیسے رد کروں گا، ان کی کتاب سے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اب سنتے جائے نا، آپ نہ گھبرائیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 62 میں کہتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم قرآن اور حدیث میں سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ارے اس طریقے سے تو ہلو بالکل نہیں سنوں گا میں نے پہلے آپ کو پوچھا تھا کہ آپ فون کاٹ کے بھاگے نا جناب، دے تو رہا ہوں، بولنے دیں مجھے، تو دے تو رہا ہوں نا، غیر المغضوب جو پڑھا ہے وہ قرآن میں تو ہے، اور کہاں پہ غیر المغضوب میں کہاں پہ؟ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ مرزا صاحب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو وہی تو دیکھ رہا ہوں، اے اللہ ہم کو ان کے اس سے بچائے جس پر غضب نازل ہوا، غضب کسی پر نازل ہو، میں ان کی کتاب تو دکھا رہا ہوں نا، کیوں ڈر رہے آپ؟ کیسے دکھاؤں گا میں؟ دکھائیں وہ لوگ تو قرآن ہی تو گمراہ ہوئے، ہاں وہی چیز تو دکھا رہا ہوں میں، دکھاؤں گا آپ کو جن پہ غضب اور گمراہ ہوئے، مرزا صاحب کی کتابوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے تو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، ارے جناب آپ کا ایمان ہے نا، میں پڑھ کے تو سنا رہا ہوں، آپ نے خود کہہ دیا کہ نہیں مل رہے قرآن پاک سے، ارے غیر المغضوب میں نے غیر المغضوب پڑھایا ہے تو قرآن میں ہی تو ہے، قرآن کے باہر کدھر ہے؟ اب میں جو غیر المغضوب قرآن سے ڈھونڈ کر دو مجھے، اگر آپ کو نہیں ملتے تو پھر مجھے بتاؤ، میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔
आप मैं कह रहा हूँ गैर मकदूब है जिस पर अल्लाह गजब नाजिल हुआ, ये चीजें हम कहाँ पे ढूंढेंगे जिस पर इसके मिजाक जो होगा उसको जिसकी किताब में मिलेगा उसका मिजाक तो उन्हीं की किताबों में ढूंढ के बताएंगे। कुरान पाक से ढूंढेंगे किन पे गजब हुआ और कौन गुमराह हुआ। हाँ तो बता तो रहा हूँ ना, वही चीजें तो बता रहा हूँ। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वला रत्ती वला याद तो इल्ला फी किताबिल मुबीन, तो ये तो कह रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। अब एक आयत मैंने आपसे पढ़वा ली, अब जब मैं उसके आपके मिर्जा साहब के वहाँ से खुलासा करके दिखा रहा हूँ कि उस आयत के मिजाक है, अरे बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप अपने मिर्जा साहब की तालीम आम ना करें, गाली गलौज ना करें। जैसे आपके मिर्जा साहब सारी जिंदगी गालियाँ बकते रहे, मुझे बताए आपके जैसे आपके मिर्जा साहब सारी जिंदगी गालियाँ बकते रहे उसी तरह गाली बकने शुरू कर दिया आपने। यार मैंने एक भी गाली नहीं दी, मैंने कहा मेरा तो अभी बदतमीजी की आपने, अभी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। आप अभी कर रहे हैं, मैंने कोई नहीं की। मैंने कोई बदतमीजी नहीं कही, आपने कहा, मैंने जब आपके मिर्जा साहब की किताबें आपके मुंह पर दिखाना शुरू कर दी तो आप कह रहे कि उनसे किताबें, तो वो जला क्यों नहीं देते आग में, क्यों रखे हैं आप? मुझे कुरान गजब वाले लोग और गुमराह आप मिर्जा साहब की किताबों में जा रहे हैं। हाँ दिखाऊंगा ना, हाँ उन्हीं में से दिखाऊंगा ना। नहीं मुझे कुरान पाक जो मैंने, कुरान पाक का जो तर्जुमा मैंने किया है, आपने किया है और मैंने भी किया है, तो उस आयत का जो मिज़ाक है मुझे सब आगे ना भागे नहीं, उस आयत का जो मिज़ाक हुआ है जो मैं दिखा तो रहा हूँ। और मिज़ाक कहने का आप ठेकेदार नहीं हो, वो अल्लाह ताला। मैं ठेकेदार क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उन्होंने ये बात, मेरी बात सुने, उन्होंने ये बातें की है ना, बात सुनते क्यों नहीं आप? उन्होंने ये बातें की है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि अल्लाह ताला ने किन को गुमराह कहा और किस पे गजब नाज़िल हुआ, मेरी आपको गुमराह या गजब वाले कहने वाले, उन्होंने खुद कहा है, बदतमीजी न कर, उन्होंने खुद कहा है। मुझे कहा है में किसको कहा अल्लाह ताला ने? अरे कहा है, सुन तो ले, सुन तो लाए, उन्होंने खुद को गुमराह कहा है। सुनाऊं मैं बात, अगर मिर्जा साहब की किताबें पढ़ोगे नहीं सुनूंगा मैं। हाँ तो छोड़ देना, उसकी किताब को आग लगा देना। क्यों, क्या करने के लिए, क्या डालने के लिए रखे क्या? वो रूहानी आग लगे तुम्हारे, आग लगाए उनकी किताबों, जब आग लगा घर को इतने चिढ़ रहे हैं, जब पढ़ के सुना रहे हो तो फिर आप जल रहे हैं। आग लगे तुम्हारे घरों को, आग लगे तो आपकी रूहानी खजाइन को, कुरान से तुम गजब वाले लोग और गुमराह। अरे जनाब, जब रूहानी खजाइन बोलो जलाने के लिए तो आप चिढ़ रहे हैं, और जब पढ़ के सुना रहे हो तो भी चिढ़ रहे हैं। मतलब क्या है? मैं सुनाऊंगा ना जहाँ से जरूरत, ऐसा है ना, सुनिए, अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो, ऐसा है ना, मेरा नंबर आप पूरे कादियान में बांट दो, उनसे कहो मेरे पे फोन कर ले, तुम लोगों की औकात नहीं है। चलो रखो, आ जाते हो, पता नहीं कहाँ से कुछ आता जाता नहीं।